Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is writ jurisdiction under the Constitution of India, Part 9, mixed in Hindi and English languages. Part 9 relates to the writ of certiorari. Here is the synopsis of Part 9. I have divided Part 9 of this lecture into 4 subparts. Part A, writ of certiorari in general. Part B, nature and purpose of writ of certiorari. Part C, writ of certiorari when to be issued. And the last subpart is writ of certiorari when not to be issued. Let us begin with subpart A. Writ of certiorari in general. उत्प्रेषण लेख सामान्यतः certiorari को हिंदी में उत्प्रेषण कहा गया है. उत्प्रेषण लेख सामान्यतः. First point, certiorari is a Latin word. Certiorari लैटिन भाषा का शब्द है. इसका शाब्दिक अर्थ है to certify, to communicate formally, to certify or to communicate formally. औपचारिक रूप से संसूचित करना, अभिप्रमाणित करना. औपचारिक रूप से संसूचित करना अर्थात लिखित रूप में संसूचित करना, हस्ताक्षरित रूप में संसूचित करना तथा मुद्रांकित रूप में संसूचित करना. To certify means to communicate formally. Formally here means in writing, duly signed and sealed. Now the second point. Judicial and quasi-judicial authorities, न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों को कैसे कार्य करना चाहिए तथा उन्हें कैसे कार्य नहीं करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है. न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए तथा किस प्रकार उन्हें कार्य नहीं करना चाहिए. Judicial and quasi-judicial authorities must act within the bounds of their jurisdiction. They must act within the limits of their jurisdiction. इन्हें अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर रहते हुए कार्य करना चाहिए. इन्हें कैसे कार्य नहीं करना चाहिए? They must not act in lack of jurisdiction. They must not act in excess of jurisdiction. They must not act in usurpation of jurisdiction. They must not act in illegal exercise of their jurisdiction. They must not act in violation of fundamental rights or
in violation of principles of natural justice. They must not act under a statute which is ultra vires. कैसे कार्य करना चाहिए तथा कैसे कार्य नहीं करना चाहिए. जुडिशियल एंड क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में रहकर कार्य करें, यह अपेक्षित है. वह अपने क्षेत्राधिकार के अतिलंघन में कार्य न करें, वे क्षेत्राधिकार विहीनता में कार्य न करें, वे क्षेत्राधिकार के विधि विरुद्ध प्रयोग में कार्य न करें, वे क्षेत्राधिकार हस्तगत करते हुए कार्य न करें, वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना में कार्य न करें, वे मूलाधिकारों के प्रतिकूल कार्य न करें, और वे ऐसे किसी अधिनियम या संविधि के अधीन भी कार्य न करें जो शक्ति बाह्य है. आप सभी को सबसे पहले यह नोट करना चाहिए और अच्छी तरह तैयार करना चाहिए कि न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों को किस तरह से कार्य करना चाहिए तथा किस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए. They must act within the bounds of their jurisdiction. They must not act in excess of jurisdiction. They must not act in usurpation of jurisdiction. They must not act in lack of jurisdiction. They must not act in illegal exercise of their jurisdiction. They must not act in violation of fundamental rights or the principles of natural justice. Lastly, they must not act under a statute or act which is ultra vires. यह अपेक्षाएं हैं न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी से कार्य करने न करने के संबंध में अपेक्षाएं हैं. क्या इन अपेक्षाओं का पालन होता है? क्यों नहीं होता है? होता है, और कई बार यह अपेक्षाएं टूट जाती हैं, इनका पालन नहीं होता है. जब इन अपेक्षाओं का पालन नहीं होता है तब याची पीड़ित हो जाता है, वह विधितः पीड़ित मान लिया जाता है. If these requirements as to exercise of jurisdiction are not complied with, the petitioner is taken to be a person aggrieved. And when he is taken to be a person aggrieved, he has a right to रेमेडी. यदि याची विधिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो निश्चय ही उसे उपचार का अधिकार होगा. अब वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले सकेगा. नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट is entitled to file a writ petition before the Supreme Court or the High Courts. If there is violation of fundamental right, he may go to the Supreme Court or to the High Courts. If there is any other purpose relating to such exercise of jurisdiction, but there is no violation of fundamental right, in that case, he will not be entitled to invoke the jurisdiction of Supreme Court, but he may still go to the High Court. आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है, मूलाधिकारों का उल्लंघन. मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है, लेकिन उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स जारी कर सकेंगे. रेमेडीज. Suppose I am petitioner. I am
the petitioner. And now I seek remedy. So what remedies are available to me now? If these requirements have been breached, if these requirements have not been complied with, what remedies are open to me? यदि यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो मुझे क्या उपचार प्राप्त है? यहां देखिए पॉइंट नंबर 3. I may demand issuance of writ of prohibition. I may demand issuance of writ of certiorari. I may demand issuance of both the writs, the writ of prohibition as well as the writ of certiorari. क्या उपचार मुझे उपलब्ध है? यदि इन अपेक्षाओं का पालन नहीं होता है तो मुझे क्या उपचार उपलब्ध है? मैं प्रतिषेध लेख जारी किए जाने की मांग कर सकता हूं, मैं उत्प्रेषण लेख जारी किए जाने की मांग कर सकता हूं, उचित मामले में दोनों ही लेख जारी किए जाने की मांग कर सकता हूं. देखना चाहिए कि क्या प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई हैं. The proceedings have accomplished and they have attained finality. कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा वे अंतिम हो चुकी हैं. लैटिन में से कहते हैं फेट एक्कम्प्लाई. फेट एक्कम्प्लाई, ये देखिए फेट एक्कम्प्लाई मीन्स proceedings have accomplished, the finality has been attained. विषय अंतिम हो चुका है, कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है. तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण लेख की मांग करना चाहिए, certiorari की मांग करना चाहिए. When the fate has accomplished, matter is final, certiorari must be prayed for to quash the result of the proceedings. कार्यवाही के परिणाम के निरसन हेतु उत्प्रेषण लेख की मांग करना चाहिए. यदि कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, फेट एक्कम्प्लाई हो चुकी है. मान लीजिए कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है, वह अब भी लंबित है, जारी है. फेट एक्कम्प्लाई नहीं हुई है. Proceeding is still going on and the matter has not attained finality. In that case, writ of prohibition may be prayed for. Prohibition issue करा के कार्यवाही को अंतिम हो जाने से रोकिए. और अगर कार्यवाही अंतिम हो चुकी है तो उसे निरस्त कराने के लिए सर्शियोररी के इश्यूएंस की मांग करिए. देख लीजिएगा, अगर प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही हैं, लंबित हैं, फाइनल नहीं हुई हैं, तो प्रोहिबिशन विल बी द एप्रोप्रिएट रिट. और अगर प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, फेट एक्कम्प्लाई हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में उस परिणाम को समाप्त कराने के लिए, उसे क्वैश कराने के लिए रिट ऑफ सर्शियोररी की मांग करना चाहिए. हाँ, एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है. कार्यवाही का कुछ अंश पूर्ण हो चुका है, दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, किंतु कार्यवाही का कुछ अंश अभी भी अंतिम नहीं हुआ है, कार्यवाही जारी है. आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, इफ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग हैज फाइनलाइज्ड, for that part certiorari must be demanded, and the part which is still going on, it has not attained finality as yet. For that prohibition shall be the appropriate writ. दोनों मांगिए. जो फाइनल हो गया है उसे क्वैश कराने के लिए, उसके नतीजों को क्वैश कराने के लिए सर्शियोररी,
और जो अभी चल रही है उसे रोकवाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रोहिबिशन। दोनों लेख साथ साथ मांगिए। फोर्थ पॉइंट, कैन द रिट ऑफ प्रोहिबिशन or the writ of certiorari be issued in regard to an administrative proceedings? क्या प्रशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में प्रतिषेध लेख या उत्प्रेषण लेख जारी किए जा सकते हैं? परंपरागत मत यह रहा है, ट्रेडिशनल व्यू हैज बीन no. Writ of certiorari or writ of prohibition is not to be issued in case of administrative proceedings. But this rigid approach has been relaxed, and now courts have been taking the view that in an appropriate case, writ of certiorari or writ of prohibition may be issued even in case of administrative proceedings. थोड़ा न्यायालय लिबरल हो गए हैं और यह कहने लगे हैं कि उचित मामले में प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी यह दोनों लेख जारी किए जा सकते हैं। Now the B point, nature and purpose of writ of certiorari. Nature and purpose of writ of certiorari. नेचर क्या है? रेमेडियल। प्रोसीडिंग फाइनल हो गई है, नतीजा सामने आ चुका है, रिजल्ट इज देयर। नाउ दिस रिजल्ट शुड बी क्वैश्ड। इस परिणाम को समाप्त कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। तो ठीक है, सर्शियोररी इशू करा के निरस्त करा लीजिए। सो रिट ऑफ सर्शियोररी इज रेमेडियल इन नेचर। क्यूरेटिव, इट इज क्यूरेटिव। जो अंतिम परिणाम सामने आया है उसका इलाज कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए, उसे क्वैश कर दिया जाए। तो यह रिट रेमेडियल है तथा क्यूरेटिव है। लेकिन यह रिट प्रिवेंटिव नहीं है और न ही यह रिट करेक्शनल है। सर्शियोररी द्वारा रिजल्ट को क्वैश कराया जा सकता है, इसके द्वारा कोई करेक्शन नहीं कराया जा सकता। इट इज नॉट ए रिट ऑफ करेक्शन। इसके द्वारा किसी परिणाम को रोका नहीं जा सकता। यह प्रिवेंटिव रिट नहीं है। चार बातें ध्यान रखिए। रिट इज रेमेडियल, रिट इज क्यूरेटिव, रिट इज नॉट प्रिवेंटिव, रिट इज नॉट अ रिट ऑफ करेक्शन। यह रिट करेक्शन का लेख नहीं है। पर्पस तो मैं आपको यही संकेत दे चुका हूं। जुडिशियल अथॉरिटी और क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी को कैसे कार्य करना चाहिए, उन्हें अपने क्षेत्राधिकार की परिधि में रहते हुए कार्य करना चाहिए। दे मस्ट एक्ट within the bounds of their jurisdiction, within the limits of their jurisdiction. लेकिन मान लीजिए वो ऐसा नहीं करते हैं, वो तो अपने क्षेत्राधिकार का अतिलंघन कर रहे हैं, वो तो क्षेत्राधिकार विहीनता में कार्य कर रहे हैं, वो तो क्षेत्राधिकार के विधि विरुद्ध प्रयोग में कार्य कर रहे हैं, वो तो क्षेत्राधिकार हड़प के कार्य कर रहे हैं, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना में काम कर रहे हैं, मूलाधिकारों के उल्लंघन में काम कर रहे हैं, ऐसी विधि के अधीन कार्य कर रहे हैं जो असंवैधानिक है। हाँ, तो ये चीज न्यायालय को दिखाया जाना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए। सो पिटिशनर मस्ट शो
that the judicial and quasi-judicial authorities are acting in improper manner, and they should be kept within the limits of their jurisdiction. So the first purpose is to keep the judicial and quasi-judicial authorities within the limits of their jurisdiction. प्रोहिबिशन का भी यही पर्पस है और सर्शियोररी का भी यही पर्पस है। दोनों रिट्स का पर्पस एक ही है। जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज मस्ट बी केप्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। फर्स्ट पर्पस। नाउ द सेकेंड पर्पस, if they are transgressing the limits of their jurisdiction, in that case petitioner should be remedied. तो दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार की सीमा में रखना। दूसरा उद्देश्य यह है कि यदि याची पीड़ित है, इनके क्षेत्राधिकार के उल्लंघन या अवहेलना के कारण पीड़ित है, तो उसे उपचार दिया जाए। नाउ पार्ट सी, सर्शियोररी व्हेन टू बी इश्यूड। प्रतिप्रेषण नहीं, उत्प्रेषण कब जारी किया जा सकेगा? फर्स्ट, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एक्टेड in lack of jurisdiction or in excess of jurisdiction or in usurpation of jurisdiction or in illegal exercise of jurisdiction or in violation of fundamental rights or principles of natural justice or under an act which is ultra vires। इनमें से कुछ दिखाइए। ये पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा, सर्शियोररी इशू करने के लिए ये दिखाना होगा कि प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज हो गई हैं। द प्रोसीडिंग्स हैव अटेन्ड फाइनलिटी। फेट accompli is a Latin word. It means proceedings have accomplished and they have attained finality। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रोसीडिंग्स हैव बिकम फाइनल। तीसरा, petitioner has suffered legal injury, he is a person aggrieved, याची पीड़ित है। चौथा, समान प्रभाविकता का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध नहीं है। There is no equally efficacious alternative remedy available to the petitioner। ये चार चीजें न्यायालय को दर्शा दी जाती हैं, तो उचित मामले में रिट ऑफ सर्शियोररी जारी कर दी जाएगी और कार्यवाही का जो अंतिम नतीजा सामने आया है उसे क्वैश कर दिया जाएगा, उसे सेट असाइड कर दिया जाएगा और इस तरह से पेटिशनर को रेमेडी मिल जाएगी। लास्ट डी पॉइंट, सर्शियोररी writ of certiorari when not to be issued। सर्शियोररी कब जारी नहीं की जाएगी? ये देखिए, करेक्शन के पर्पस से। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हैज ज्यूरिसडिक्शन। न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार है, लेकिन उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जो उन्होंने निर्णय दिया है वो एरोनियस है। दे हैव ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं। ज्यूरिसडिक्शन था और उन्होंने उस ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग किया,
लेकिन जो निर्णय उन्होंने सुनाया है या जो निर्णय उन्होंने रिकॉर्ड किया है वो निर्णय एरोनियस है, इनकरेक्ट है। तो क्या सर्शियोरेरी के द्वारा उस डिसीजन को करेक्ट कराया जा सकता है? नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज नॉट ए रिट ऑफ करेक्शन। इसमें सर्शियोरेरी इशू नहीं की जाएगी। आप जाके अपील करिए, आप जाकर के रिवीजन करिए, या जो भी और उपचार आपको करेक्शन मैकेनिज्म के रूप में सुलभ हैं वो उठाइए। सर्शियोरेरी की कामना मत कीजिए। सर्शियोरेरी इज नॉट ए रिट ऑफ करेक्शन। दूसरा, किसी स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक घोषित करने के लिए petitioner says that a statute or an ordinance is unconstitutional and that should be quashed. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी स्टैट्यूट या किसी ऑर्डिनेंस को अल्ट्रा वायर्स असंवैधानिक घोषित कराने के लिए सर्शियोरेरी की मांग नहीं की जा सकती है। न तो करेक्शन के लिए आप इस रिट की मांग कर सकते हैं, न ही किसी स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने के लिए इस लेख की मांग की जा सकती है। तीसरा, जबकि पेटिशनर के पास इक्वली एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो उसे उस इक्वली एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी को अवेल ऑफ करना चाहिए। ही हैज नो राइट टू इंस्टीट्यूट और टू फाइल अ रिट ऑफ सर्शियोरेरी। आप जानते हैं कि रिट ज्यूरिसडिक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है। जब आपके पास वैकल्पिक उपचार है और वह समान प्रभाविकता का है तो आपको वहां जाना चाहिए। Writ jurisdiction cannot be invoked in such a case. तो सर्शियोरेरी कब इशू नहीं किया जाएगा? पहला, करेक्शन के पर्पज से। दूसरा, किसी स्टैट्यूट या किसी ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए। और तीसरा, वैकल्पिक उपचार होते हुए भी रिट की याचना कर रहे हैं। ऐसे में इन तीनों स्थितियों में रिट ऑफ सर्शियोरेरी इशू नहीं की जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय है, ये देखिए, प्रबोध वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी ऑर्डिनेंस को या किसी स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने के लिए रिट ऑफ सर्शियोरेरी लाई नहीं करेगी। रिट ऑफ सर्शियोरेरी इस पर्पस के लिए मेंटेनेबल नहीं है। नो रिट ऑफ सर्शियोरेरी कैन बी इश्यूड टू डिक्लेयर एन एक्ट और एन ऑर्डिनेंस टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायर्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।